Hello everyone, this is Rohit Menon, ex-visa officer in New Zealand Embassy, coming towards the end of the New Zealand series for the New Zealand student visa interview question and answer. Probably the last statement of the interview is when the visa officer is closing on the interview part, and wherein the visa officer will say, okay, thank you very much for your time. That's all the information I required. Do you want to add or say anything in support of your application? इस तरीके से वीजा ऑफिसर एंड करता है. अगर वो ऐसे एंड नहीं करता तो अगर आप कुछ कहना चाहते हो अपनी एंड में, एक मौका होता है, लास्ट चांस होता है कि आप अपनी पिछली कोई इंटरव्यू में कुछ बोल दिया हो जो कि शायद गलत आंसर हो और उसको आपको ठीक करना हो, तो ये मौका होता है. मोस्ट लाइकली वीजा ऑफिसर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है वेयर इन ही और शी सेज दैट डू यू वांट टू ऐड और से एनीथिंग इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन. अगर ये नहीं हो तो यू कैन पॉज द वीजा ऑफिसर कि डियर सर, मैम, आई वांट टू से समथिंग इन सपोर्ट ऑफ माई एप्लीकेशन, कैन आई से दैट. ये एज एन इंटरव्यूवी आपका राइट है कि अगर आपको कुछ भी अपने एप्लीकेशन के बारे में बोलना है तो आप वीजा ऑफिसर को रोक के टोक के बोल सकते हो दैट आई वांट टू से इन समथिंग इन सपोर्ट ऑफ माय एप्लीकेशन, और आई वांट टू से समथिंग दैट वेयरइन आई वांट टू करेक्ट माय आंसर. यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, इसका मुझे आंसर करेक्ट करना है. आई वांट टू से दिस. उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था बट अब मुझे याद आ गया है. तो इस तरीके से सो व्हेन द वीजा ऑफिसर सेज दिस टू यू, this is a golden opportunity to wrap up the entire interview answers in one. You can end by saying, ma'am, sir, thank you very much for giving me an opportunity to provide answers to the questions regarding my student visa application. Before you come to the final outcome of my application, I just want to say that I have a genuine intent only to study in New Zealand and gain an international qualification, probably based on circumstances, get an international work experience also, and make a good profile for myself, enhance my profile to a domestic, to an international or a global level. You can say this, and you can say that I am meeting all the requirements of a genuine international student visa application or applicant to New Zealand, wherein I have got excellent education record. My scores in my 12th or in my graduation is very good. I have chosen a course which is related to my previous qualification and experience. If you have, आप ये बोल सकते हो. You can also say that I am showing funds through my sponsor, my parents, who are funding my education, which covers the entire living expenses and the tuition fees for my program. ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो आप कवर कर सकते हो. And you can say that my intent to study in New Zealand is genuine because I have a plan to gain an international qualification and experience. So my purpose of studying in New Zealand is also logical, and I am meeting the English language requirements as well. तो ये सारे पॉइंट्स आप बोल के एक अपने एप्लीकेशन को एक पूरा कवरेज दे सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, एकेडमिक रिकॉर्ड, फंड्स, चॉइस ऑफ कोर्स, ये सारी चीजें आप मीट कर रहे हो जो कि एक स्टूडेंट वीजा को असेस करने के लिए वीजा ऑफिसर को चाहिए होती है. इस तरीके से कोशिश करो कि एंड करना. सिंपली थैंक यू बोल के बंद मत कर देना. राइट, वीजा ऑफिसर बोले थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन आई रिक्वायर्ड, एंड आप बोलो थैंक यू सर. Try to close this interview with command, right? Try to close this interview with a strong answer जो कि वीजा ऑफिसर को सोचने पे मजबूर कर दे कि यार ये तो सारी क्राइटेरिया मीट कर रहा है. वीजा ऑफिसर क्या देखता है आपकी एप्लीकेशन में स्टूडेंट वीजा की, कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आपने पढ़ाई जो करी है, आप एकेडमिकली स्ट्रांग हो या वीक हो, कैसे हो. अगर आप अच्छे हो तो ये एक पॉजिटिव चीज मानी जाती है. फिर वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट देखता है. दूसरा पॉइंट कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे हो, आईएलटीएस में या पीटीई में क्या स्कोर किया हुआ है, जो कि
क्या आप कोप कर पाओगे अपनी पढ़ाई में न्यूजीलैंड में, ये देखता है। तीसरा वो देखता है फंड्स, क्या आपके पास एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फंड है या नहीं है। चौथा देखता है कोर्स, जो आपने कोर्स चूज किया है वो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन या इंटेंट और उससे लॉजिकल है कि नहीं, रिलेटेड है कि नहीं। तो ये चारों इंपॉर्टेंट चीजें, एकेडमिक्स, आईएलटीएस, फंड्स और जो आपका इंटेंट है, जो आप पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते हो, ये चारों चीजें मेन क्राइटेरिया होती हैं वीजा ऑफिसर के लिए, ना केवल न्यूजीलैंड के लिए बट बाकी कंट्रीज के लिए भी। अगर आप ये सारी क्राइटेरिया मीट करते हो तो वीजा ऑफिसर को आपको वीजा देना ही चाहिए, राइट। सो विद दिस दे विल क्लोज दिस इंटरव्यू। आई थिंक ये न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं, बट इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे गए हैं या जिसका आप आंसर ठीक से नहीं कर पाए, या फिर इफ यू थिंक दैट देयर इज अ क्वेश्चन which you don't know an answer to, you can write in that question on the comments and I will answer it then and there by replying to your comment, right? So you would know the answer to that question. So with this, I think I can conclude the New Zealand interview question and answer series. I hope all these questions become very valuable for you to prepare for your New Zealand interview. Not just New Zealand actually, you know, it's a very generic questions जो हर मतलब आपको मैंने recent New Zealand questions answers बताए हैं, but बाकी भी जो हैं कंट्रीज में स्टूडेंट वीजा में इसी लेवल के क्वेश्चन और आंसर्स पूछे जाते हैं। तो आई होप दिस रियली हेल्प्स यू एंड कीप वॉचिंग। लाइक आई ऑलवेज से, इफ यू लाइक्ड इट then don't just keep it to yourself, share it with others, like, subscribe to my YouTube channel and keep connected with me. Stay connected. Thank you so much. This is Rohit Menon signing off for today.